Okay, so myself Apurupa Guho, today I have to discuss on phenantine. Okay, already I discussed about naphthalene and anthracene as a polycyclic hydrocarbon. So today I have to discuss on phenantine. Okay, तो मैंने पहले क्या कर दिया, आपका जो एंथासिन और नैप्थलीन और उस एंथासिन का डेरिवेटिव और नैप्थलीन का डेरिवेटिव वो मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, सो टुडे आज हम फिनांथिन को लेकर हम जानेंगे. ठीक है, फिनांथिन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. दैट इज देयर इन पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है नैप्थलीन से. Most question that should be come from naphthalene. Okay, naphthalene and its derivative. Next, the question may be come from anthracene and phenantine. In phenantine, there must be little scope of question that should be come. Okay. So for BSc, this polycyclic hydrocarbon is important. For MSc, this polycyclic hydrocarbon is important. But for other exam like CSIR, GATE, all over the exams, there must be very little question that should be come from polycyclic hydrocarbon. Okay, but still there may be in any year, in any time, there must be a chance that question may be arranged in that chapter also. Okay, ऐसा भी हो सकता है कि कभी नहीं आया मतलब कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन पैटर्न में ऐसा हो ही सकता है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन दे दिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है. ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल. नेक्स्ट वन, जब आप पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ोगे, एनबीएस केबीएस, वहाँ पर जो इंटरव्यू होता है या फिर पीजीटी केमिस्ट्री बोला जाए या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, बाकी सब, वहाँ से भी आपका पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आ सकता है. देयर मे बी चांस. Especially for interview purpose, there may be the interviewer can ask the question from polycyclic hydrocarbon. So that's why polycyclic hydrocarbon, that is very much important. Okay. Now phenantine is important. Why? Because phenantine having some different characteristics than naphthalene and anthracene. Okay. So today I have to discuss on phenantine. Okay. Okay. The major three polycyclic hydrocarbons are there, that is naphthalene, anthracene and phenantine. The other respective polycyclic hydrocarbon you have to know, but there must be little question that should become in your exams, in your entrance tests, in interview also. Okay, जो आपका पायरीन होता है और भी बहुत सारा होता है, बेंजोपायरीन और भी बहुत सारा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है जो होता है, एग्जिस्ट करता है, पर उससे क्वेश्चन कंफर्म होता है. ठीक है, ओके, पर आपको थोड़ा बहुत तो जानना है. ठीक है, तो नेक्स्ट है आई विल डिस्कस ऑन अदर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट दिस थ्री, naphthalene, anthracene and phenantine. Okay, but today I have to focus on phenantine. Okay, clear? Okay, now I have to start. Okay, first one, that is phenantine. Phenantine is a tricyclic non-linear fusing system and isomer of anthracene. Why that is said? That is a tricyclic. You see, that is one ring, second ring, third ring. Okay, there must be 1, 2, 3. 3 ring is there. 1, 2 and 3. 3 ring is there. And in these 3 rings, 3 benzene rings are fused together in non-linear fashion. Not a linear but a non-linear fashion. राइट. ये जो आपका 3 रिंग है, 3 बेंजीन का रिंग है, वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है. ठीक है, और ये आपका क्या है, नॉन लीनियरली कनेक्टेड है. लीनियर नहीं है, लीनियर मतलब ऐसे जाएगा, ये नॉन लीनियर है. ठीक है, और क्या है, ये आपका आइसोमर ऑफ एंथ्रासिन है. Why? Because if you count the number of carbon atoms, number of hydrogen atom, that is C4H10, that is also the basic formula of phenantine also. देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, रुको, थोड़ा इधर उधर हो गया है, रुको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो C14 होगा। ओके, C14, ठीक है, C14 है। अब देखो आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा 1 2 3 4। जंक्शन में हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन में क्या है, आपका ऑलरेडी कार्बन का फुल मतलब ऑक्टेट फिलअप है और टेट्रा वैलेंसी भी फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है क्योंकि कार्बन का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सो दैट्स वाई कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ही ले सकेगा, ठीक है। और कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है और कार्बन का ऑक्टेट ही आपको फुलफिल करना है। वहाँ पर आपका 18 कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक्स्ट्रा पेंटा वैलेंसी हेक्सा वैलेंसी करने का कोई स्कोप नहीं होता है क्योंकि कार्बन का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न। ओके, सॉरी, कभी कभी लाइट अप डाउन हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। तो देयर मस्ट बी अनदर हाइड्रोजन, हेयर ऑल्सो अनदर हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। और कहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है? यहाँ पर हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10 होगा, ये आपका H होगा, H10, ठीक है, सॉरी। तो आपका अगर बेसिक फार्मूला हम बोले तो फार्मूला होगा C14H10, जो आपका एंथोसिन का ही फार्मूला है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं एक ही फार्मूला में अगर आपका 2 स्ट्रक्चर आप पाते हो तो दैट इज ऑल्सो दिस 2 स्ट्रक्चर आर आइसोमर टू ईच अदर, right? Same chemical formula, but the structure are defined. That means the 2 structure are isomer to each other. So that's why anthocyanin also having the chemical formula that is C14H10, and phenanthin also having the formula C14H10. So that's why anthocyanin and phenanthin, they are isomer to each other. Maybe the structure are defined, but formula that should be same. Okay, next one. नंबरिंग देखो, यहाँ से 1 होता है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो 1 2 3 4 5, 5 मतलब यहाँ पर आता है 5, मतलब जो मिडिल का पहले ऐसे आपका नेमिंग होता है 1 2 3 4, उसके बाद जो मिडिल का जो बेंजीन बोर्ड छोड़कर यहाँ से नंबरिंग होता है, ठीक है। तो पहले ये जो टर्मिनल बेंजीन में वहाँ पर नंबरिंग होगा 1 2 3 4, इसके बाद इस टर्मिनल बेंजीन में नंबरिंग होगा 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 10। मिडिल का जो बेंजीन है उसमें नंबरिंग लास्ट में होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू कंसिडर सिंथेसिस। कैसे प्रिपेयर होता है? कलर, बहुत सारा कलर है ना, एक कलर देखते हैं। सिंथेसिस, फर्स्ट वन हावर्ड सिंथेसिस। हावर्ड सिंथेसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हावर्ड सिंथेसिस में आप नैप्थलिन प्रोड्यूस कर सकते हो, एंथोसिन प्रोड्यूस कर सकते हो एंड ऑल्सो फिनांथिन प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो हावर्ड सिंथेसिस दैट इज ए कॉमन सिंथेसिस ऑफ ऑल द 3 पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पर मेकानिज्म थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। ओके, तो पहले नैप्थलिन, उसके साथ CH2 ये जो एनहाइड्राइड है ये रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 ऐसे लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैसे? आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर के साथ AlCl3 आपका कोऑर्डिनेट करेगा, उसके बाद नैप्थलिन का रिंग यहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनिल में, ठीक है। तो उसके बाद आपका 2 टाइप का प्रोडक्ट आएगा, दिस 2। ओके, नेक्स्ट वन यू हैव टू डू दैट इज जिंक अमालगम, जिंक Hg, ओके, एंड ऑल्सो HCl एसिड यूज होगा। देन दिस CO दैट इज C-H रहेगा, आपका चेंज होगा दिस CO कॉन्वर्ट इनटू CH2। यहाँ पर क्या होगा? CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH2 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है, CH2 हो जाएगा। मतलब जिंक Hg, जिंक एमालगम और HCl, इसका काम क्या है? इसका काम है कार्बोनिल टू CH2 कन्वर्ट करना। ठीक है, जिंक Hg और HCl का काम क्या है? दैट इज द वर्क ऑफ जिंक Hg एंड HCl दैट शुड बी कन्वर्ट कार्बोनिल टू CH2। ओके, नेक्स्ट वन THF दैट शुड बी यूज फॉर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होगा THF that must be used for cyclization. These two products can be formed. Okay. Then again zinc Hg HCl that should be used. Why? Because there must be a carbonyl, there must be a carbon. This carbonyl convert into CH2. This carbonyl convert into CH2. Ultimately this produced. And actually this first one and this second one that should be at the same product. सिर्फ देखो एक दूसरे का, अगर CH2 CO, अगर आपका CO जो है कार्बोनिल है वो अगर आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाए ना तो एक ही प्रोडक्ट होगा। देखो आपका CH2 कन्वर्ट कर दो, इसमें भी आपका CH2 CO को CH2 कन्वर्ट कर दो, इसमें भी आपका CO को CH2 कन्वर्ट कर दो, देखो एक ही प्रोडक्ट आएगा। दिस सेम प्रोडक्ट दैट शुड बी कम। Then palladium used for aromatization, so ultimately phenanthrene can be produced. Okay, clear? तो क्या हो गया बोलो? पहले यहाँ पर अटैक होगा लुइस एसिड के टाइम में, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद जिंक Hg HCl यूज होगा तो CO कन्वर्ट इनटू CH2, जो आपका यहाँ पर CO है, यहाँ पर CO है, वो आपका किस में कन्वर्ट होगा? CH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक, उसके बाद ऐसे दो प्रोडक्ट होगा, उसके बाद THF यूज होगा फॉर साइक्लाइजेशन। ओके, साइक्लाइजेशन होगा तब ये दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगेन जिंक Hg HCl यूज होगा। क्यों यूज होगा? आपका यहाँ पर जो कार्बोनिल है और यहाँ पर जो कार्बन है, दो कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू CH2। ओके, उसके बाद ए प्रोड्यूस होगा, ए स्टिल आपका एरोमेटाइज नहीं है, सो पैलाडियम यूज होगा फॉर मेकिंग एरोमेटाइजेशन, फिनांथ्रीन कैन बी प्रोड्यूस्ड। Okay, clear? Next, Bodhon Sengupta synthesis, that is very much important. Why? Why important? Because this is, you know, that is अगर आप बंगाल से हो, if you are from West Bengal या फिर त्रिपुरा और Bengali as a language, so there must be maybe the university can make this question because Bodhon Sengupta, this he is a Indian, and I think Sengupta, I think he is also Bengali, I think, I don't मेरा उतना ज्ञान नहीं है टाइटल से, पर वो इंडियन है तो कंफर्म है। ठीक है, बंगाली भी हो सकता है आई थिंक। तो जो भी हो, तो ये आपका इंडियन का एक सिंथेसिस है, इसलिए ये जो है इंडियन जो यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज से, यहाँ पर इससे क्वेश्चन आ सकता है फॉर MSc एंड BSc प्रेफरेबली, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर पहले जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? 1-bromo-2-phenyl ethane, that is 1-bromo-2-phenyl ethane. 1-bromo-2-phenyl, no, 1-bromo-2-phenyl ethane, this, if this is 1 होगा तो ये आपका 1 होगा। ठीक है, और क्या बोला गया? 2-ethyl 2-oxocyclohexane कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका क्या होता है? 2 होगा, तो ये आपका 2 होगा। ethyl 2-oxo, this 1 and 2 that should be react to produce ultimately what? Phenanthrene. ओके, पर ये जो 1 and 2 वो कैसे प्रोड्यूस होगा? इसमें भी आपका ट्विस्ट है, इसमें भी आपको कुछ सिंथेसिस करना है। फर्स्ट वन यू हैव टू प्रोड्यूस 1, दैट मीन्स 1-bromo-2-phenyl ethane, ये आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, 1-bromo-2-phenyl ethane, दैट मीन्स दिस 1, दिस आपको ए प्रोड्यूस करना है 1। ठीक, तो 1 आपको कैसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा? यहाँ से, ऐसे आपको प्रोड्यूस करना है, यहाँ से। देखो, पहले आपको ब्रोमो बेंजीन देना है, दिस इज यू हैव टू टेक इन ब्रोमो बेंजीन। आपको ब्रोमो बेंजीन लेना है,
उसके बाद Mg ईथर से ट्रीट करना है। उसके बाद क्या होगा, वो बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कंपाउंड होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका डेल नेगेटिव होता है फिनाइल में, और मैग्नीशियम जो होता है वो डेल पॉजिटिव होता है। तो वो फिनाइल से क्या होता है, अटैक होगा। तो यहाँ पर आपका इपोक्साइड रिंग ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, पहले इनिशियली MgBr होगा, हाँ MgBr नहीं होगा, आपका ऐसे ही होगा, CH2OH ऐसे ही होगा। आपका HCO+, आपका जो ऑक्सीजन नेगेटिव था वो ऑक्सीजन नेगेटिव में प्रोटोनेशन हो जाएगा। मतलब देखो आपका जब बेक करेगा ना, बेक करने के बाद क्या होगा, पहले तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन ना होकर यहाँ पर O नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद HCO+ का रोल होगा प्रोटोनेशन करना, ठीक है। तो प्रोटोनेशन करने के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, दिस OH आएगा, ठीक। O नेगेटिव था वो OH होगा बाय प्रोटोनेशन, HCO+। उसके बाद HBr होगा। HBr का काम क्या होगा, H यहाँ पर Br नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और OH बाहर आ जाएगा। OH तो नहीं बाहर आएगा, ये जो H है इस H आपका OH2+ कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो H है वो क्या करेगा, यहाँ पर OH2+ करेगा, ठीक। और आपका यहाँ पर जो Br है, Br- यहाँ पर अटैक करेगा और OH2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपका CH2Br होगा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला कंपाउंड, 1 आपका प्रोड्यूस हो गया। अब आपको 2 प्रोड्यूस करना है, मतलब इथाइल 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, आई थिंक, यस, 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, दैट इज दिस 2 आपका 2 प्रोड्यूस करना है। 2 कैसे प्रोड्यूस होगा, आपको साइक्लोहेक्सानोन लेना है, साइक्लोहेक्सानोन लेना है। उसके बाद आपका ये जो आपका डाइकीटोन वाला, डाइकीटोन नहीं है, डाई COOCH2CH3 एंड COOCH2CH3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका रिएक्शन होगा, आपका CH3CH2ONA, दैट मीन्स यहाँ पर आपका O नेगेटिव, यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव, आपका आयनिक कंपाउंड दे गया है, जहाँ पर आपका जो ETO नेगेटिव, ये तो आपका ETO नेगेटिव ही है ना। CH2CH3 मतलब क्या है, इथाइल ग्रुप ET, और O नेगेटिव ETO नेगेटिव, राइट। CH3CH2 मतलब क्या, दैट इज ET एंड ETO नेगेटिव, तो ETO नेगेटिव दैट शुड बी देयर, ओके। तो ETO नेगेटिव का काम क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो नेगेटिव है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। उस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक, क्लियर। अटैक करने के बाद यहाँ पर जो OCH2CH3 है ये आपका बाहर आ जाएगा, इसको ही हम बोला OET बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो CH2CH3 बाहर आ जाएगा मतलब OET बाहर आ जाएगा। This OCH2CH3 that should be leave means OET leave, because CH2CH3 is nothing but that is the ET. So OCH2CH3 that means OET. So here first what is the work, that is CH3CH2O negative Na positive. Here this CH3CH2O negative abstract this proton first. Proton abstracted. Then there must be this anion can be produced. Okay. And then this anion react on this carbonyl, okay, and then again OCH2CH3 that should be leave, and this OCH2CH3 is indicate OET that should be leave, okay. So there this is produced, okay. Then heat introduced, and when heat introduced, this CO2 that should be leave, CO2 no, this CO that should be leave, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका
the second this 2 that is must be ethyl 2-oxocyclohexane carboxylate can be prepared. Okay, clear? देखो पहले क्या किया, ए नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आपका क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। वो नेगेटिव चार्ज करेगा क्या, इस कार्बोनिल में अटैक करेगा, राइट। यहाँ पर CO2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर O है, अरे दिस O, राइट। तो ये आपका OCH2CH3 बाहर आ जाएगा, मतलब OCH2CH3 मतलब क्या है, OET, वो बाहर आ जाएगा। बाहर हो जाने के बाद ये आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हीट इंट्रोड्यूस करोगे तो CO बाहर आ जाएगा, मतलब दिस CO दैट शुड बी लीव। उसके बाद आपका दिस इथाइल 2-oxocyclohexane carboxylate कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट। अब दिस 1 and 2 दैट शुड बी रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। उसके बाद क्या होगा, देखो ये हम मिटा देते हैं, तो आपका SN2 रिएक्शन होगा, क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ओके, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, Br आ जाएगा, ठीक। Br बाहर आ जाएगा तो आपका A प्रोड्यूस होगा, तो इसके साथ इथानॉल बाहर आ जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप KOH ट्रीटमेंट करोगे, HCl ट्रीटमेंट करोगे, हीट इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली आपका A प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हीट में आपका CO2 बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद सोडियम मॉइस्ट आपका सोडियम मॉइस्ट इथर H यूज होगा, तो दिस CO, ये जो आपका CO था वो OH कन्वर्ट होगा, ठीक। P2O5 क्या काम करेगा, साइक्लेशन करेगा, तो साइक्लेशन होगा, पहले A प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ऐसा प्रोड्यूस होगा, ओके। देन सेलेनियम दैट शुड बी यूज फॉर एरोमेटाइजेशन, फाइनल एरोमेटाइजेशन कैन बी देयर, फिनांथिन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ओके, क्लियर। तो पहले आपका क्या बोला गया है, बोलो, देखो पहले आपका ए हाइड्रोजन, आपका ए जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा और Br बाहर आ जाएगा, ठीक। Br ब्रोमीन दैट शुड बी लीव, okay, this negative charge, this hydrogen abstract first, so their negative charge carbanion can be produced, this carbanion attack on CH2 and Br that should be leave, that is also SN2, that is backside attack, okay. So that should be produced, and then KOH HCl heat can be introduced, so ultimately this COCH3 that should be leave, okay, leave as a minus ethanol minus CO2, okay. Then sodium moist ether can be used, so this carbonyl convert into OH. This carbonyl convert into OH. Okay. Then P2O5 that should be introduced for cyclization. So first this produce and then this produce. Okay. Then selenium used for aromatization. So ultimately phenantine can be produced by Bordon-Shenigupta synthesis. Okay. So this is the mechanism, that is you have to prepare this one compound from there, this is 1, you have to prepare 2 compound from this 2 means this आपका A1 है, A आपका 2 है,
ठीक, and then 1 and 2 that should be combined to produce ultimately phenanthine. Okay, that's it. दैट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बुगार्ट कुक सिंथेसिस। यहाँ से बहुत लोग क्वेश्चन करता है यार, यहाँ से आपका MSc BSc में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड यूज़ हुआ है, तो जहाँ पर आपका मिथाइल मैग्नीशियम ईथर यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर क्या करेगा, मैग्नीशियम CH2 और Br के बीच में घुस जाएगा, राइट। तो देयर मस्ट बी दिस मैग्नीशियम दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड व्हाट, one type of Grignard reagent, right? Okay, so there must be this CH2 negative and there must be CH2 Mg positive. Here that is negative and Mg that should be del positive. Del positive actually होता है आपका Grignard reagent में, और जब आप ऑर्गेनोलिथियम यूज़ करके तब वहाँ पर फुल्ली आपका क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है, पर यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा बहुत कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ही होता है। तो ये जो आपका डेल नेगेटिव ऑब्वियसली वो कार्बोनिल में अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो मोर डेल पॉजिटिव होता है, ठीक। तो दैट इज दिस benzene CH2 make del negative side, and that should be react on carbonyl, because carbonyl always, this carbonyl carbon show the positive character, partial positive character, okay। So that's why this bond also cleave, आपका ये जो कार्बोनिल का बॉन्ड होगा वो क्लीव होगा, ठीक। क्लीव होने के बाद क्या होगा, दिस क्लीव, ओके। देन when cleave, so there must be first O negative can be produced, and this O negative can be protonated by H3O plus. This first O negative can be produced and then this O negative protonated by H3O plus, okay। So ultimately this OH can be produced, okay, clear, okay। Then concentrated H2SO4 can be used, so there must be this hydrogen here one hydrogen is there, so this hydrogen and this OH that should be released, that means water that should be released, okay, water that should be released, so ultimately double bond can be produced। आपका क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक। मैं कहाँ दिखाऊं, बोलो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक। तो ए हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर आएगा एंड OH बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर H2O बाहर आ गया है, ठीक, ओके। तो H2O बाहर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, ओके। देन अगेन दिस डबल बॉन्ड रिएक्ट ऑन दिस साइड, ये जो डबल बॉन्ड है ये आपको यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद आपका ऐसा प्रोड्यूस होगा, उसके बाद सेलेनियम यूज़ होगा फॉर एरोमेटाइजेशन, सो फिनांथिन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक समझ में आया, दैट इज क्लियर कट टू यू। तो दिस phenyl ethyl bromide can be used, and there must be Mg ether can be incorporated, so Grignard reagent can be produced, and in Grignard reagent this del negative side means this benzene CH2 del negative that should be react on carbonyl, and when that should be react on carbonyl, obviously this carbonyl bond that should be break, so first one there must be their O negative can be introduced, okay, and then HCO plus can be there, so protonation can be there। so जब protonation होता है, when this protonation can be occur, so this OH can be produced, okay। then again concentrated H2SO4 can be there, concentrated H2SO4 can be there, okay। तो what is the work, concentrated H2SO4 क्या करता है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन जाएगा, OH बाहर जाएगा, तो मतलब आपका हाइड्रोजन और OH क्या होता है, H प्लस और OH, H2O बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाने के बाद यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक। उसके बाद वो जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है आपका बेंजीन को अटैक करेगा, ठीक, बेंजीन को अटैक करेगा,
this double bond should react on benzene. So ultimately that should be produced, and then again selenium can be incorporated to aromatization. So ultimately phenantine can be there. Then short synthesis. In this synthesis, orthonitrophenyldehyde. This orthonitrophenyldehyde. Orthonitrophenyldehyde means 1. So that is 1. Sodium phenyl acetate, that must be 2. So that must be 2. That should be react with Ac2O. So ultimately that should be produced. Then zinc H plus 0 to 5 degree centigrade and NO2 and H2SO4. So ultimately this NO2 convert into what? Zinc H plus क्या करेगा? NH2 convert करेगा. NO2 convert into NH2 in the presence of zinc H plus. Zinc H plus that should be used for NO2 convert into NH2. That is nitro 2 amine that should be produced. Okay. And then this 0 to 5 degree and NO2 and H2SO4 that is for use for diazotization. 0 to 5 degree centigrade temperature and NaNO2, sodium nitrite and sulfuric acid H2SO4 that should be used for diazotization. That means N2 plus HSO4 minus. Okay. Then copper and H2SO4 used for cyclization and also somehow aromatization. And then there must be CO2H is there. There must be decarboxylation can be there. Heat introduced CO2H that should be leave. And I already said that is after decarboxylation, if there is carbanion should be produced, and this carbanion if stable, so only that purpose डिकार्बोक्सिलेशन कैन बी ऑकर. आपका डिकार्बोक्सिलेशन तभी होगा जब आपका CO2H रिलीज होने के बाद जो कार्बोनाइन होगा वो स्टेबल होगा. तो आपका कार्बोनाइन तो स्टेबल ही होगा क्योंकि वो आपका होल ओवर जो फिनांथिन है वहाँ पर आपका डीलोकालाइज होता है रेजोनेंस थ्रू. ओके, इसलिए आपका कार्बोनाइन स्टेबल होता है. सो डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल, डिकार्बोक्सिलेशन होगा. सो दैट्स वाई CO2 दैट शुड बी रिलीज. सो फिनांथिन अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड. Okay, so that is there must be what is the thing that is first compound that is must be called orthonitrophenyldehyde that should be react with sodium phenyl acetate, and so that's why the first product can be produced. Then again zinc H plus can be introduced. That is the role, that is NO2 convert into NH2. नाइट्रो से एमिन करने के लिए आपका जो जिंक H plus वो यूज होता है, जिंक H प्लस यूज होता है. उसके बाद ये जो आपका प्रोसेस बोला गया है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन NO2 H2SO4 दैट शुड बी यूज फॉर diazotization. That means N2 plus HSO4 minus. Okay. Then copper and H2SO4 used for aromatization and cyclization. Okay. And then still CO2H is there, so heat that should be used and CO2 release, decarboxylation can be occurred, so phenantine can be produced. Okay. And I already says decarboxylation that should be happen for this case where the carbanion after CO2 eliminate there must be carbanion can be produced, and this carbanion should be stable. So here if carbanion is produced, so that should be stable by whole over the resonance of phenantine, right? So that's why decarboxylation can be happen. Okay. Next one. Next one, from internet I get some reaction of phenantine. Phenantine का रिएक्शन बुक में बहुत ही कम है. मैं बहुत सारी बुक में भी देखा पर वहाँ पर ज़्यादातर नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मुझे हेल्प लेना पड़ा इंटरनेट का. ठीक है, इंटरनेट में बहुत रिएक्शन है. जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने बोल दे रही हूँ. और भी अगर आप रिएक्शन जानना चाहते हो तो इंटरनेट में सर्च करोगे फिनांथिन का रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन आएगा. वहाँ पर रिसर्च वर्क भी है बहुत सारा, जर्नल पेपर भी आई थिंक आप पाओगे. ठीक है, तो दैट इज योर इंटरेस्ट. So first one, Fe and FeBr3 can be introduced. So what should be produced? This position Br can be occupy. Okay, 9 position. फिनांथिन में ज़्यादातर केस में 9-10 में ही आपका सब्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, Br2 यूज़ करोगे तो पहले एडिशन होगा. दिस HBr इस डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड का एक स्पेशलिटी होता है. ये जो डबल बॉन्ड है फिनांथिन का ठीक बीच वाला, दैट इज द इन बिटवीन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ 2 बेंजीन रिंग्स. दिस डबल बॉन्ड शो मोर इन कैरेक्टर, मीन्स मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देन एरोमेटिसिटी. ठीक है,
फिनांथिन का जो मिडिल बॉन्ड है, फिनांथिन हैविंग द मिडिल बॉन्ड, दिस मिडिल डबल बॉन्ड शो लेस delocalization and more localization, means more double bond character, less aromatic character. So that's why there may be addition can be possible in this between double bond. Okay, जो between का double bond है वहाँ पर addition हो सकता है. Why? Because जो between का double bond है उसमें aromatic character कम होता है और double bond का character ज़्यादा होता है. ठीक है, ओके. तो आपका एडिशन होगा, उसके बाद हीट इंट्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर आपका H आएगा, Br चला जाएगा, ऐसे HBr रिलीज होगा, ऐसे एलिमिनेशन टाइप होगा. तो यहाँ पर आपका HBr बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही Br रहेगा और आपका यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा. ठीक, तो ये आपका रिएक्शन होगा. उसके बाद K2Cr2O7 and H2SO दैट शुड बी यूज फॉर व्हाट? जो ये आपका ए रिंग है, ए रिंग को ही आपको ऑक्सीडेशन कर देगा. K2Cr2O7 and H2SO both are oxidizing agent, that are oxidizing agent. कौन सा? ये जो K2Cr2O7 and H2SO वाला. ठीक, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका इस रिंग को ही आपका COOH और COOH में कन्वर्ट कर देगा. ठीक, नाउ सोडियम एंड दिस C5H11OH, इसको आई थिंक अमाइल अल्कोहल बोला जाता है, मुझे देखना पड़ेगा. ये जो है इसका काम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करना. ठीक, रिड्यूस एजेंट, ये आपका रिड्यूस करेगा. ये जो डबल बॉन्ड को यहाँ पर हाइड्रोजन करके एडिशन करेगा, मतलब हाइड्रोजिनेशन करेगा. क्या करेगा? हाइड्रोजिनेशन करेगा. ओके, एंड नेक्स्ट CrO3 COOH, that should be also used for oxidation. ओके, ऑक्सीडेशन करेगा और कीटोन जेनरेट करेगा. ठीक है, ये आपका रिएक्शन पर्पस है. उसके बाद देखो, फिनांथिन डज नॉट इजीली पार्टिसिपेट इन डेल सेलर रिएक्शन एज डाइन. डाइन की तरह बिहेव नहीं करता है. आपका एंथासिन में जैसे आपका एक मिडिल का जो डबल बॉन्ड होता है, दो डबल बॉन्ड, वो डाइन की तरह बिहेव करता है, पर फिनांथिन में वैसा नहीं होता है. फिनांथिन में आपका कोई भी दो डबल बॉन्ड डाइन की तरह बिहेव नहीं करता है. पर हाँ, एक बात है जहाँ पर यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, पर मैं बोलूँगा, ऑब्वियसली बोलूँगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये आपका थोड़ा बहुत डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. ठीक है, ये आपका डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी लेस होता है और मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. ठीक है, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, डाइनोफाइल की तरह बिहेव करता है. तो आपका क्या बोला गया है? जो फिनांथिन है वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन डी सेलर रिएक्शन एज डाइन, डाइन की तरह बिहेव नहीं करता है, जो एंथासिन कर सकता है. एंड डूइंग सो ब्रेक द हाईली स्टेबल एरोमेटिक रिंग. ओके, सो दैट्स वाई फिनांथिन ठीक है, तो वो ये आपका एंथासिन से शुरू हो गया है. इतना तक आपका फिनांथिन था. ठीक है,
तो phenanthrene does not easily participate in real cellular reaction as diene compared to anthracene because doing so break highly stable aromatic ring. जो आपका दो यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है, राइट. तो इसलिए आपका दोनों साइड में दो स्टेबल बेंजीन रिंग होता है, इसलिए मिडिल वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादातर केस में डाइनोफाइल की तरह बिहेव करता है. पर यहाँ पर क्या होता है, मिडिल में क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड तो नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डाइन कैरेक्टर नहीं शो होता है, इस एक्सेप्ट यहाँ पर डाइनोफाइल की तरह बिहेव हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट, आज हम क्या ख़त्म करेंगे, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टोटली ख़त्म करेंगे. ठीक. तो इसलिए हम थोड़ा बहुत कुछ एंथ्रासिन नैप्थेलिन को लेकर थोड़ा बहुत और भी डिटेल्स में कुछ लिख कर रखे हैं. ठीक है, वो भी आप जान लो. अब हम जानेंगे एंथ्रासिन के बारे में. क्या जानेंगे, एंथ्रासिन. एंथ्रासिन के बारे में जानेंगे. ठीक. तो एंथ्रासिन जब ये आपका रिडक्शन होता है N2 निकेल और H2. ओके, निकेल H2 दैट मीन्स रिडक्शन. सो रिडक्शन होने में जो बीच का जो रिंग होता है वो रिड्यूस होकर आपका 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन प्रोड्यूस होता है. क्यों होता है, बीच का क्यों होता है, आप बोल सकते हो क्यों बीच का होता है. बीच का क्यों होता है, उसका कारण होता है यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग इंटैक्ट होता है, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग इंटैक्ट होता है. तो आपका इधर उधर दोनों साइड में दो बेंजीन रिंग एकदम इंटैक्ट होता है, एरोमेसिटी आपका ब्रेक नहीं होता है. और आप जानते हो बेंजीन रिंग का एरोमेसिटी नैप्थेलिन एंथ्रासिन और फिनांथ्रीन से बहुत ज़्यादा होता है. तो दोनों साइड में बेंजीन रिंग एज इट इज़ दैट शुड बी intact in nature. So obviously this configuration that should be more stable, thermodynamically more stable. And the resonance energy, loss of resonance energy only 51 kilojoule per mole. Okay. Then if you add again H2 nickel, okay, see that is must be 1 mole. Okay. And that should be used for reduction. Reduction. Okay, this is again 1 mole. एक मोल देने के बाद again 1 mole, and that is also used for what? Reduction. Okay, so after 1 mole there are again 1 mole that should be added. Here what you see, that is this the terminal ring that should be reduced. Why? आपका यहाँ से ये आपका प्रोड्यूस हो सकता है अगेन 1 मोल इफ यू एड इन सिटू हो जाता है. ठीक है, इन सिटू दैट शुड बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो व्हाई, the reason is there must be naphthalene can be produced. Naphthalene is must be stable thermodynamically stable product. Okay, अगर आप और भी दूसरा कोई भी प्रोसीड्यूर में जाओ तो आपका इससे ज़्यादा स्टेबल कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आप पाओगे. ठीक है, if you reduce other two double bonds in any other side, you never get any stable product, you never get any stable structure, never get any stable configuration. So that's why naphthalene can be intact in nature, and 1 2 3 4 tetrahydroanthacene that should be produced. 1 2 3 4 why? Because there must be position that should be also indicate here. 9 10 dihydro means this 9 and 10 position reduced. Okay, and here 1 2 3 4 means here 1 2 3 4, this 1 2 3 4 position there reduction can be done. Okay, that's why this is called as 1 2 3 4 tetrahydroanthacene. पहले बोला गया था 9 10 dihydroanthacene because this 9 10 position this reduction can be done, and next one 1 2 3 4 tetrahydroanthacene because at specified position 1 2 3 4 this 1 2 3 4 position reduction can be done. So that's why. And in the second scenario, there only the loss of resonance energy, that is 96 kilojoule per mole. That is very much less, and that is thermodynamically stable product. Naphthalene can be there. Okay. Next one. Next one, Bucherer reaction of naphthalene. This OH convert into amine. Okay, how? First one, NH4 whole twice SO3 can be there. This is an ionic compound, so that should be dissociate. Again, this one,
dissociate into this. Okay, and this naphthanol, beta naphthol that should be used here. Beta naphthol that should be, आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लिख नहीं सकते हो ऐसे कि ए बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, टोटोमराइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटो टोटोमेराइजेशन हो रहा है। टोटोमेराइजेशन होने के बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन HCO3 माइनस क्या करेगा, आपका यहाँ पर अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, बॉन्ड ऐसे आएगा, यही तो हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो ये आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक, ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर से देखो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर से टोटोमराइजेशन हुआ, दिस, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक, तो आपका यही प्रोडक्ट आया, ठीक है। देन NaC यहाँ पर रिएक्ट किया, यहाँ पर O नेगेटिव आया, दिस। उसके बाद क्या होगा, ये जो H, एक H ले लेगा, या इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस 2 एंड अगेन हाइड्रोजन लेगा, और ए बॉन्ड आपको इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक। इन पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होने के बाद ए आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। O नेगेटिव हाइड्रोजन ले लेगा एंड NH3 पॉजिटिव जो होता है वो न्यूट्रलाइज होगा, ओके। O नेगेटिव abstract this proton and NH3 plus this nitrogen positive that should be neutralized. So again there must be hydrogen can be there, hydrogen that should be make a double bond, and OH that should be released, so ultimately their water can be released, okay. This is produced. Again if you use any base यूज़ करना है तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आपका डिलोकाइलाइज होगा, होने के बाद NH नेगेटिव होगा, ठीक। दिस NH नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ए बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, SO3H बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर SO3H बाहर हो गया, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है KF। अगर आप KB में जाना चाहते हो, मतलब बैकवर्ड में जाना चाहते हो, तो बैकवर्ड में क्या होगा, SO3H क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा, अटैक होने के बाद आपका यही आपका प्रोड्यूस होगा, राइट। अगर आप ये जो चीज़ है ये मतलब बैकवर्ड रिएक्शन मतलब KB बैकवर्ड रिएक्शन मतलब इससे ये आपका प्रोड्यूस करना, यही आपका बैकवर्ड रिएक्शन है। जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट से पहले वाला प्रोड्यूस करना, इसको आप बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। कैसे प्रोड्यूस होगा, आपका जो SO3 माइनस होता है वो आपका यहाँ पर अटैक करेगा, ए बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक, नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद फिर से ए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका इस हाइड्रोजन को लेगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा करने के बाद यही आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, ये आपका प्रोड्यूस हो गया है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ही हम बीटा नाफ्थालेमिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होल ओवर द रिएक्शन, यहाँ पर ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब आप इसको मतलब क्या होता है फॉरवर्ड, इसका मतलब बैकवर्ड,
मतलब आप फॉरवर्ड जा रहे हो, मतलब रिएक्टेंट से, ये आपका सोचो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो, ठीक है। ये आपका बैकवर्ड है, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहे हो, तो इस मतलब रिवर्सिबल, दैट कैन बी बोथ वे कैन बी पॉसिबल। ओके, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। Next I will discuss on other polycyclic hydrocarbon. Okay, so thank you so much. Thank you, and please subscribe ऑपा केमिस्ट्री। वहाँ पर मैंने ऑपा केमिस्ट्री में देखो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर आपका जो मेन जो साइट है वहाँ पर लिखा हुआ है आपका फिर जो इंस्टाग्राम थ्रेड सबका, तो याद रखना, ऑपा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, ऑपा केमिस्ट्री थ्रेड, ऑपा केमिस्ट्री इंस्टाग्राम, ऑपा केमिस्ट्री तीन फेसबुक ग्रुप आप सर्च करोगे पाओगे। अपरूपा गुहो एजुकेशन कंसल्टेंट आप फेसबुक सर्च करना, वहाँ पर पाओगे। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी मैंने दे दिया है, प्रोवाइड किया है, वहाँ पर आप घुस सकते हो। और नेक्स्ट मैं अपकमिंग डेज में मैं एक नंबर भी प्रोवाइड करूँगा फॉर व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप सब ज्वाइन हो सकते हो कोई भी ग्रुप में। केमिस्ट्री में अगर ऑनलाइन क्लासेस मैं शुरू करूँ तो तब होगा, ठीक है। आपके लिए इतना ही तक, ठीक है, यूट्यूब तक ही चल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।